Ladies and gentlemen, this is a story that has shocked the entire country. It's a story that makes us ask so many questions and loud enough. So we decided to reach the crime scene. NDTV, as we speak, our team is on ground zero. They've tracked a lot more people. We've spoken to key eyewitnesses trying to piece together the entire sequence of event. And even as all this is happening, remember Sonam Raghuvanshi is at the Patna airport where she's going to be taken from Patna to Kolkata on a flight that will later take her to Guwahati. And then from Guwahati, she's going to take another 2 hours to get to Shillong. But before all that happens, let's quickly cut across to our team that is tracking the story from Meghalaya. Saurabh is with us. Well, the police had a suspicion that once they found that CCTV footage that, this was a murder and that perhaps Sonam Raghuvanshi was involved, given the fact that she was seen, which is very important, this crucial piece of CCTV footage with the other men who they believe to be the contract killers. Now, let me just give you an idea of where the body was found. It's cleared up again so I can show you better. Just look at this gorge and you can see how deep it is. Now, if someone were to commit a crime here, and you can see, of course, this area. I'll ask my camera person to first pan and show you this area as well. Absolutely isolated right now. In fact, we are just the only people here. So, if you come here, it's so isolated that you can obviously, you can, if you have a criminal mind, if you have a criminal intention, then you can do something like that. And if you dump the body here, and the body we believe was found somewhere in this gorge. We don't know what the exact location was, but we know somewhere in this gorge. You cannot even see the bottom of the gorge. It's so deep, like from where I'm standing, because it's deep and it's almost, a 90-degree cliff. So very, very difficult to figure out where the body would be. The police had to, actually lower drones. Drones were used to carry out this search operation, and finally they located the body after days, brought it up. And once they had the body, they knew that, this was a murder case. And they also found, the other pieces of evidence, including what we call is the weapon of the crime, the weapon used in the crime. And that again was, like I said, we've been reporting that it was not a local weapon. So obviously the police kept their focus on the investigation, followed the clues, followed up on every lead, and finally led to these arrests. But just look at the surroundings. They are beautiful hills. These places are frequented by tourists. These places are frequented by trekkers as well. But the route, I've been tracing the route that Sonam and Raja Raghuvanshi took. And, it's quite clear that a regular tourist or regular trekkers also don't take that route. They took a much more circuitous, a much more desolate, an isolated route with much less human population. And that's perhaps one of the giveaways as to why this is a premeditated murder. Because if someone had to actually trek in these areas, they would use the regular path, the regular trails that trekkers use. But in this case, they did not use a regular path. They took a very circuitous route. And, I've followed this route entirely right up to the point where the two-wheeler was parked. And it's a very, very remote area. There's no mobile network. There's no mobile connectivity. It's a place that doesn't even exist on, the maps that we use for navigation. That's how remote it is. So obviously, it's a very, very difficult place to locate a body. And that gave crucial time to the accused to escape. All right, Saurabh, they're getting us the latest. We'll keep going back to him. In the meantime, let's also tell you more about how the story has moved in the last few hours. Now, the mother of Raja claims that there were some people who apparently saw Raj Kushwaha at the very funeral of her son Raja. And this along with Sonam's father. In fact, that is the picture that I'm referring to, a picture a lot of you have already seen. And this is when the newly married couple were on their honeymoon in Meghalaya. What really started as a probe to find the couple who go missing on May the 23rd turns out to be a murder investigation when you have Raja's body that is found in a gorge. And this was June the 2nd. Then the search continued for Sonam, claiming that she was drugged. Then she says, I was brought to Ghazipur. Now, she later informs her family about this, knowing that the police would eventually reach her. Then later we know that she told her family that she was at a dhaba on the Ghazipur-Varanasi road. But clearly a lot in this story does not add up. Before we move ahead, I want you to listen in to what Raja's mother has to say. आपकी आखिरी बार सोनम और राजा से बात कब हुई थी? 23 तारीख को।
क्या आपकी दोनों से एक साथ बात हुई थी? नहीं, अलग अलग हुई थी। पहले सोनम से हुई थी, सोनम के मोबाइल से, फिर राजा से की गई थी। राजा का मोबाइल 2 दिन पहले से स्विच ऑफ था, तो मैंने सोनम से बोला कि राजा का मोबाइल अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? बोले नहीं मम्मी उनका तो बंद है, तो वो तो बैग में रख लिया, बोले उनने। तो रख लिया था कि रखवाया गया था ये भी मेरे को नहीं पता। तो मतलब सोनम और राजा साथ में थे, उसके भी 2 दिन पहले से राजा का फ़ोन बंद था? 2 दिन पहले से राजा का फ़ोन बंद था। सोनम के फ़ोन से ही सारी चर्चा हो रही थी? उससे ही सारी चर्चा हो रही थी। सोनम से जब बात हुई थी आखिरी, तब क्या बात हुई थी? सोनम से यही बात हुई थी, मैंने लगाया था, राजा को लगाया था, तो राजा का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो फिर मैंने सोनम के पे लगाया था। मैंने कि कहाँ पे हो तुम लोग? तो बोले कहीं नहीं मम्मी, ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। तो मैंने कि ना फिर थक गए होंगे? तो बोले हाँ मम्मी बहुत थक गए हैं। तो मैंने कुछ खाने पीने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बोले एक जगह कॉफ़ी मिली थी, बहुत गंदी थी, मैंने फेंक दी, और ये तो मेरे से बार बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं है ना घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उस दिन 11 थी। उसके बाद में राजा से बात हुई थी, जो सोनम हाँप रही थी ना, इसके बाद में फिर राजा से बात हुई थी। वो भी उसके मोबाइल से उसने लगा के दिया था उधर से कि लो मम्मी से बात करो। तो उसने यूँ नहीं बोला था कि लो बात करो, बस डायरेक्ट फ़ोन दे दिया था लगा के। तो राजा ने बोला हेलो। तो मैंने कि बेटा क्या कर रहा है? तो बोले कुछ नहीं मम्मी, हम ऊपर पहुंच गए हैं, केले खा रहा हूँ। उसने यूँ बोला था। बस आखिरी बार वही बात हुई थी? बस वही बात हुई थी, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। फिर मैंने शाम को भी ट्राई करे, फिर दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ गए थे, और सुबह से लगा रही थी। फिर शनिवार के दिन 7 बजे से उठ के तो कोई फ़ोन नहीं लगा। तो मेरा जी खूब घबराया। मैंने उसके भाई उनसे बोला, वो संडे के दिन ही चले गए। फिर उनने उसके वहाँ बोला कि दोनों बच्चे के फ़ोन बंद आ रहा है, राजा का तो आ ही रहा था। तो उनके भाई ने बोला राजा के सोनम के पास 2 नंबर हैं, 2 फ़ोन लेके गई है, तो एक नंबर तो शायद उसके ऑफिस का है, किसका है। तो क्या आपको पता था कि वो 2 फ़ोन लेकर गई? मेरे को नहीं पता था, बाद में उनके भाई ने बताया, जब वहाँ जांच हो रही थी ना, तब पता चला कि वो 2 फ़ोन लेके गई है। वहाँ जांच के वक्त खुलासा हुआ था? हाँ, जब खुलासा हुआ था, मगर अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक फ़ोन चालू था उनका। जी। क्या वो नंबर आप लोगों के पास था? नहीं, हमारे पास नहीं था, एक ही नंबर है मेरे पास। तो जी, आप लोगों की जब राजा से बात हुई थी, तब कभी ऐसा लगा कि उनका मन घबरा रहा है, वो किसी तरह से परेशान है? कोई ऐसा तो कुछ एहसास नहीं हुआ। जब वो खा रहा था ना, तभी थोड़ा सा ऐसा डाउट सा जा रहा था। तो मैं पूछने वाली थी, मेरे मन में जो था, तो मैंने ये तो नहीं पूछ पाया कि बेटा कोई आसपास है। मैंने बस इतना पूछा था कि बेटा तुम ऊपर की तरफ क्यों आए हो? हैं ऊपर ज़रूरी देखना, ऊपर से इतने ऊंचे पे से खाई देखोगे तो खतरा है ना, डर लगता। तो बोले नहीं मम्मी बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, उसने ये बोला था बस। जब अब सोनम के बारे में इतनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, तो क्या आपका दिल मान रहा है कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकती है? इतनी सारी बातें आ रही हैं तो कर भी सकती हैं। आजकल तो लड़कियों ने ऐसा कर रही हैं, कितने ही सुनने में आ रहा है। शादी जब हुई थी तब सोनम खुश थी? क्या दोनों की राजी मंजूरी से शादी हुई? राजी मंजूरी से हुई थी, परिवार भी राजी मंजूरी थे, बच्चे भी राजी मंजूरी थे। उस टाइम पे तो उसने कुछ ऐसा दिखाया नहीं था। So that is the devastated mother also asking for a CBI probe in the entire case. Now, who's the alleged mastermind? The alleged mastermind in this case is Raj Kushwaha. And he interestingly already has worked with Sonam. Now, he lived near her home. We also spoke to Raj's sister, who denies that Sonam and Raj were involved beyond work. They insist that this was just a professional relationship and how he does not know the other 3 accused in the case at all. राज कुशवाहा की छोटी बहन सुहानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुहानी बेटा, आप कितने छोटे हो राज भैया से? 2 साल 2.5 साल का गैप है हम दोनों में। जी, आप कैसे हैं? आपके भाई, आपको क्या कभी ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में, हम उनको इतना जानते हैं। और वो राजा भैया, उनकी क्या गलती थी? वो ऐसा उनके साथ, वो उनको तो जानते भी नहीं होंगे, शादी से ही जाना होगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते उनके साथ। जी, आपके भाई ये प्लाईवुड फैक्ट्री में कब से काम कर रहे हैं? 2 से 2.5 साल हो गया उनको। गोविंद भैया के यहाँ पे काम करते हैं। कोविड से यहाँ पर काम कर रहे हैं? गोविंद भैया के यहाँ पे काम करते कोविड से नहीं कर रहे। 2.5 साल से यहाँ पे काम। हाँ। उससे पहले कहाँ थे? उसके पहले से भैया 10th क्लास में थे जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था। तो फिर भैया ने 10th के एग्ज़ाम दी, उसके बाद वो कपड़ा मार्केट में काम करते थे, पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर वो 3 साल तक वहाँ पे काम करते थे। पर जब उनका कंप्यूटर का कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद उनकी यहाँ इस जगह में नौकरी। अच्छा, कभी ये आनंद, आकाश या फिर विशाल, किसी दोस्त, ऐसे किसी दोस्त की सूचना थी?
हाँ, विशाल भैया तो हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे, उनको भी हम जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो भी है नॉर्मल, उनका भी एक छोटा सा घर है अपना नंदबाग में, वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो वो लोग इतना कुछ तो कभी नहीं कर सकते। आनंद आकाश किसी से और दोस्त? लोगों को नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो विशाल भैया के पड़ोसी हैं। विशाल को आप जानते थे? हाँ, उनको जानते, वो हमारे भाई है जी। अच्छा, कभी आपने सोनम का नाम सुना था? उनका फ़ोन आता था काम के सिलसिले में कि हाँ कहाँ है, टाइम हो गया बेटा, तू कब तक आ रहा है, 11 बज गई है, गाड़ी भरवानी है, बिल बनाया कि बनाया, ऐसे ही फ़ोन आता था उनका। कभी घर आती थी सोनम? नहीं, कभी नहीं आई वो 2.5 सालों में। कभी आप लोग उनके घर गए? नहीं, हम भी कभी उनके घर नहीं गए। जी। हमेशा फ़ोन पर बात होती थी? नहीं, हमारी तो उनसे कभी बात नहीं। हाँ, ऐसे काम के उसमें फ़ोन आता था तो हम इतना ही, वही तो हम लोगों ने इतना ही देखा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। Let's move on now to get you our next important piece in this entire investigation. Now, there is this phone call that happens between Sonam and Raja's mom. This is a phone call that takes place hours before his murder. And Raja's mom apparently called Sonam during the trek, and that apparent phone call, many say, could hold the key to the way that you heard Sonam speaking. Sit back and watch what we've got for you. हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ, अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। So that is a brief conversation, but again, that gives away a lot more details. Let's now take you to Indore, because this is where, in the entire case, you have the Shillong police along with the Indore's crime branch that have earlier conducted a search operation, this at the residence of one of the 4 accused in the case. Remember, his name is Vishal Singh Chauhan. Now, the ACP of the Indore crime branch, in fact, has later said that they've recovered the clothes that he, as in Vishal, was wearing while he was in Shillong on the day of the incident. And they also say that he has perhaps accepted that yes, they all committed this murder. जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। उसके अलावा जो बताया और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। सोनम ने एक्सेप्ट किया है, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। ये सोनम यहाँ आई थी क्या? ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी। सर, क्या क्या जब्त हुआ? साथ में और अलग थे और कहीं पर? नहीं, बस पैंट शर्ट जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने, वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं, अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहे हैं। So all right, it's a multi-city investigation right now underway, and do remember the woman in question, Sonam, will be in Shillong by the end of the day today. As always, NDTV will continue to keep you on top of that story. For the moment, we head into a quick break.